اس نے پہلے سے ہی چابی بنائی ہوئی تھی تو میری بہو کے کمرے کا تالا کھول کے ووڈن باکس میں رکھی ہوئی جیولری اٹھا کے کالے شاپر میں ڈال کے فرار ہو گئی۔ گھر کی بھیتی تھی؟ ہاں جی۔ کیوں چوری کی؟ کیا چوری کیا؟ بس میرا بیٹا نشہ کرتا تھا، اس کے علاج کے لیے اپنا گردہ بھی بیچنے کی کوشش کی تھی، میں نے کہا بک جا، پھر میں نے کہا چلو اپنے بچے کے لیے یہ کرو۔ نئی بات ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں نئی بات ڈیجیٹل۔ گھریلو ملازمہ جو گھر سے ملازمت چھوڑے ہوئے جسے 1.5 سال گزر گیا تھا، اپنے بیٹے کے علاج کے لیے گھر میں موجود زیور کو چوری کر لیتی ہے۔ کہاں سے انٹر ہوتی ہے اور کتنا زیور چوری کرتی ہے اور یہ گھر کی بھیتی کتنی ہے، یہ سب آپ کو دکھاتے ہیں۔ کنور عزیز الرحمان صاحب ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں جو کہ اس مقدمہ کا مدعی ہیں۔ ان کی بہو کا گولڈ چوری ہوا گھریلو ملازمہ کے ذریعے سے۔ کتنا گولڈ تھا، کیا کہانی ہے، یہ ہم جانتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کنور صاحب کیا ہوا تھا؟ جی 15 نومبر 2022 کی بات ہے، صبح 8 بجے کے قریب ہماری ایک سابقہ ملازمہ ہمارے گھر میں مین گیٹ کے اوپر سے ہاتھ ڈال کے لیور، گیٹ کا لیور، تالے کا لیور کھول کے اندر داخل ہوئی، اور اندر داخل ہونے کے بعد وہ ہم صبح کے اوقات میں ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنے جابس پہ گئے ہوئے تھے، میں اور میری اہلیہ تو اشراق کی نماز میں مصروف تھی، میں فجر پڑھنے کے بعد سویا ہوا تھا۔ اس نے موقع جان کے وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر والی منزل پہ چلی گئی، اور وہاں جا کے اس نے پہلے سے ہی چابی بنائی ہوئی تھی تو میری بہو کے کمرے کا تالا کھول کے وہ اندر داخل ہو گئی۔ وہاں سے اس نے ٹارگیٹڈ پلیس سے ووڈن باکس میں رکھی ہوئی جیولری اٹھا کے واپسی پر جب سیڑھیوں سے اترنے لگی تو وہ میری مسز اہلیہ کی موجودگی کا احساس کر کے واپس لوٹ کے آئی، اور واپسی اس نے بذریعہ سیڑھیاں نہیں کی، اس کی بجائے وہ ٹیرس سے پورچ، گراج کی چھت سے دیوار سے فرش، اور فرش سے پھر دوبارہ اسی گیٹ سے وہ واپس لوٹ گئی۔ یہ دیکھ کے وہ پریشان ہوئی اور فوراً وہ اپنی الماری سے اس نے جب مسنگ پایا اس نے مجھے اطلاع دی، اور پھر ظاہر ہے میں نے 15 وغیرہ پہ رنگ کر کے تب پولیس بھی بلوا لی۔ کتنا گولڈ تھا؟ یہ اندازاً 18 سے 20 تولے طلائی زیورات تھے۔ جی یہ بتائیے گا کہ جب یہ خاتون ملازمہ آپ لوگوں کے گھر پر کام کرتی تھی تو اس ٹائم گھر کی بھیتی تھی پوری؟ بہت زیادہ بہتی تھی، اور چونکہ یہ کمروں میں صفائی وغیرہ کا کام اور اس طرح سے اوپر کرتی، اس لیے اس کو الماریوں کا اور باکسز وغیرہ کا سارا اندازہ تھا۔ یہ بتائیے کہ لاک میں رکھا ہوا تھا یا اوپن تھا؟ یہ ووڈن باکس تھا، لاک تھا، الماری کو بھی تالا تھا، اس کو بھی وہ تالا جو ہے نا کھول کے یا کسی طریقے سے کھینچ کے الماری تک اس نے اندر رسائی کی، الماری کے شیلف تک رسائی کی، اور وہاں سے ووڈن باکس جس پہ چائنا کا چھوٹا تالا لگا ہوا تھا وہ ووڈن باکس لے کے ایک شاپر میں، کالے شاپر میں ڈال کے فرار ہو گئی۔ گھر کے باہر پڑوسیوں کے کیمرے سے ڈیٹیکٹ ہوئی، اس کے بعد کالونی میں بھی سیکیورٹی جو کیمراز لگے ہوئے تھے ان کی مدد سے بھی اس کو ٹریس ہوگی۔ پھر بعد میں ہمارے کالونی سے باہر نکلتی اس کی رہائش گاہ تھی اگلی گلی میں، میں نے محلے داروں سے بھی رابطہ کیا، انہوں نے تعاون کیا، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ میں وہی شاپر ہے، وہ اپنے گھر میں گھستی ہوئی پائی گئی، جس کے بعد اس کے پاس بچ نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اب آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ مکہ کالونی کے احسن نامی زرگر سونیار کے پاس فروخت کر دیا گیا ہے 3 تولے، جس کی پولیس کوشش کر رہی ہے، اس کی برآمدگی ابھی ڈیو ہے، امید واسق ہے کہ وہ چند دنوں میں اس کو بھی اس سے بھی برآمد کر لیں، اور کچھ پورشن وہ ابھی تک مان نہیں رہے ہیں ملزمان۔ اگر پولیس کا تعاون رہا تو وہ بھی چیزیں برآمد انشاءاللہ ہو جائیں گی، مجھے مکمل توقع ہے۔ ملزمان کیا کہتے ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ گھریلو ملازمہ ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہے، پورا نام کیا آپ کا؟ صدف قربان۔ صدف اونچی آواز میں بات کرنی ہے۔ صدف کتنے عرصے سے لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہو؟ باجی 15 سال ہو گئے ہیں۔ 15 سال ہو گئے ہیں۔ کیا ہوا تھا؟ تھانے کیسے پہنچی؟ یہ باجی کی چوری کی تھی نا تو انہوں نے پکڑوا کے پھر ادھر لے، میں نے کہا باجی آپ مجھے ادھر بلا لیتے تو میں آپ کو واپس سارا کچھ کر دیتی۔ باجی کے گھر کتنا عرصہ کام کیا؟ 2 سال گیا تھا، 1.5 سال ہو گیا چھوڑے ہوئے کو، ویسے آنا جانا لگ رہتا۔ ٹھیک ہے، ان 2 سالوں میں کیا کیا کام کرتی تھی ان کے گھر؟ باجی صفائی کرتی تھی، کپڑے دھوتی تھی، استری کرتی تھی، بس۔ گھر کی بھیتی تھی؟ ہاں جی۔ اچھا
क्यों चोरी की, क्या चोरी किया? बस मेरा बेटा नशा करता था, उसके इलाज के लिए भी बहुत कोशिश की लोगों से मांगने की, बहन भाई से किसी ने दी, इसलिए बाजी की है मैंने। बेटा नशा करता था, नशे का इलाज करवाना था आपने, अच्छा फिर? तो बस किसी ने नहीं दी। अपना गुर्दा भी बेचने की कोशिश की थी, मैंने कहा बिक जाए मैं अपने बेटे का इलाज कर लूँगी। तो बहुत हालत ख़राब थी, नहीं किसी ने लिया। फिर मैंने कहा चलो अपने बच्चे के लिए ये कदम। गुर्दा बेचने के लिए कहाँ कहाँ गई? मैंने कहा किसी से मांग कर, डॉक्टर किसी से पूछ लेती हो। तो एक के पास गई, उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं ये काम कर सकती। किसके पास गई थी? वहीं गली पे किसी को ना टीका वगैरह लगाया, मेडिकल से मैंने बात की। मैंने कहा अगर मैंने अपना गुर्दा बेचना, बच्चे को कहते नहीं बाजी हम नहीं ये काम करते, और ना हम आपको कहते हैं भी ये आप काम करो। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, जिस दिन घर गई हो चोरी करने के लिए, मालिकन घर पर मौजूद थी? उनके ससुराल वाले नीचे थे। ठीक है, क्या कहा? नहीं वैसे ही ऊपर चली गई थी, गेट की कुंडी खोल के ना तो अंदर चली गई थी। ऊपर जाके बाजी का दरवाज़ा खुला था तो अंदर गई हूँ, तो वापसी पे खिड़की की तरफ से नीचे आ गई। खिड़की की तरफ से नीचे आ गई। कहाँ कहाँ उन्होंने जेवर रखा होता था, सब पता था आपको? नहीं मुझे पता था कि इतना सा बॉक्स था, ये नहीं मुझे पता था भी इसमें जेवर है, ये पैसे, ये नहीं मुझे पता था। ठीक है। वो बॉक्स लॉक नहीं था? नहीं लॉक खुला हुआ था बॉक्स। ताला नहीं था? नहीं उसमें ताला नहीं था। अच्छा, तुम्हें पता था ये बॉक्स कहाँ पड़ा है? हाँ जी, अलमारी में एक दो दफ़ा देखा था, मुझे नहीं पता था उसमें जेवर था कि पैसे। अच्छा, फिर? तो वो उठा के लाई थी और घर लेके आई थी। ठीक है, घर ला के फिर क्या किया? वो मेरे अपने कज़न को दिया। मैंने कहा भी मैं ना वैसे ही बाजी अल्लाह के खौफ से ना डर गई थी, तो मैंने कहा ये आप ना इधर रख लो, तो मैं वापसी से आके ना अगर कोई रोला ना पड़ा तो मैं वापस कर दूँ कि मुझे बहुत डर लग रहा है। तो वो जब हम पकड़े गए ना तो वो लेके ना तो चला गया, मुल्तान चला गया। तो फिर हमने राब्ता करके उधर लेके उसको सारा कुछ बाजी का वापस कर दिया। कज़न के साथ क्या ताल्लुकात हैं आपके? मेरी ना खाला की बेटी का मियाँ है। आपका क्या लगता है? कज़न ही है सब। और देवर ही मैं कहती हूँ, वो मुझे भाभी कहते हैं। उसने आपको मना नहीं किया कि चोरियां ना करो? बस मैंने कहा ये मेरी चीज़ है, मैं आके ले लूँगी। वो डर के ना तो भाग गया और वो ले के साथ ही चला गया। फिर मैंने उधर से जाके ना तो वापस सारा कुछ ले लिया। जिस घरेलू मुलाजमा पर मालिकन ये यकीन करे कि ये काबिल एतबार है और इसको घर में रखना चाहिए, उसी के घर में चोरी कर देना। कितने रुपए की चोरी की? ये नहीं मुझे पता बाजी कितने का जेवर है। मैं सारा जेवर ले लिया? हाँ जी, उन्होंने सारा ले लिया है। हाँ जी, ले दिया, वापस कर दिया सब कुछ। अच्छा, मुझे बताओ आपको इस बात का मालूम है, पता है कि ये गलत बात है? बाजी गलती हो गई है बस। गलती क्या हो गई है? गलती कर ली है बाजी मैंने। हाँ जी। क्या होना चाहिए आपके साथ? बस बाजी अपने बच्चे के लिए किया मैंने जो ही किया। बच्चे को नशा जब शुरू किया था उस टाइम मना करना था, या लोगों के घरों में चोरियां करके नशा का इलाज करवाना है? पहली दफ़ा बाजी ये काम किया, कभी नहीं, कभी किसी का कुछ भी नहीं मैंने उठाया। कज़न का क्या कहना है, उससे भी बात करते हैं। क्या नाम है पूरा? गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास क्या करते हो? ड्राइविंग करता हूँ। उम्र कितनी है? 36 साल। खातून के साथ क्या ताल्लुक है? कज़न का कज़न है? रिश्तेदार है और एक ही घर में रहते हैं। ठीक है, ये बाहर से चीज़ लेकर आई थी और मुझे नहीं पता चला था ये कि मुझे सेल कर दो। बच्चा इसका दाखिल है कैंसर के मरीज़ में, उधर अपना नशा करता है। तो कहाँ पे दाखिल है? ये लाल पुल के पास ही है। अच्छा, तो वो हाँ लाहौर में। तो वो कह रहे कि ये चीज़ सेल करके कुछ उनको फीस देनी है, कुछ मैंने लेने थे तो कुछ किराया देना था। ठीक है। लाख रुपया मैंने उधार लिया था इनसे, इसमें और मेरा कोई काम नहीं है। किनसे उधार लिया था लाख रुपया? अपनी कज़न से। अच्छा, उसने जेवर बेचकर मुझे लाख रुपया मुझे दे दिया। ठीक है। हाँ जी। इसमें इतना करदार है कि मैंने वो अपना किराया वगैरह दिया है, मैं अपना कैंसर का मरीज़ हूँ। ठीक है, मैं अपना घर मुल्तान चला गया हूँ। इसकी जो चीज़ें थी वो ये नहीं थी, घर में नहीं थी। अगर मैं घर में रखता तो ये भी मेरे ज़िम्मे लग जाना था। मैं मुल्तान गया हूँ, उन्होंने कहा जी ये मेरी चीज़ें वापसी दे दो। मैं वापस, आप जेवर लेके मुल्तान चले गए? भागा नहीं हूँ, चीज़ वो एक अमानत के तौर पर मैं उधर गया हूँ। आपने इमानत लेते हुए पूछा नहीं क्या रखवा रही हो मेरे पास? वो मैंने ये नहीं पूछा। नहीं पूछा। डिब्बा पकड़ाया था? हाँ, वो शापर था, शापर के अंदर जेवर था। आपने पूछा नहीं कि ये जेवर कहाँ से आया?
मैं यही आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर पता होता तो मैं रिटर्न कर देता। मैंने आपसे पूछा है कि जब आपके पास कोई चीज रखवाता है ना तो आप पूछते हैं कि ये कहाँ से आया है भाई इतना सारा जेवर, आपने नहीं पूछा? नहीं, उसमें मैं नहीं पूछा। क्यों? वो इसलिए मैंने पैसे लेने थे इनसे कि चलो मेरा किराया वगैरह आ जाए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये चीज़ आप रख लें, मैं जब आऊँगी तो मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ, वापसी आकर आपको दे दूँगी। ठीक है। आप मुल्तान कहाँ लेकर गए? मुल्तान अपने भाइयों के घर गया हूँ। अच्छा, फिर? हाँ, तो तकरीबन कोई 5-7 दिन रहूँ। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन वगैरह नहीं किया। जब ये मुझे पुलिस उधर लेकर, मैं कहा ये तो आ रही है खातून आ रही, मैं इसको वापसी जैसी चीज़ें थी वैसे रिटर्न कर दी हैं, उसमें कोई चीज़ें वगैरह आगे पीछे नहीं हुई हैं। आपको क्या लगता है, आपको हथकड़ी लगी हुई है, आपकी कितनी की गलती है? चोरी करने में आप शामिल नहीं थे बकौल आपके, बिल्कुल मेरी वीडियो। आपकी गलती क्या है? गलती यही चीज़ है कि जो मैंने आकर जेवर जो सुनारे को ज़मानत के तौर पर दी है, बस ये गलती है मेरी। आप सुनारे को देकर आए हैं? हाँ, सुनारे को। कहाँ पर? ये तो गुलबर वो भी पकड़वा दिया था, सुनारे से वो भी बरामद करवा दिया था। फिर आपको मालूम था ना कि ये जेवर चोरी का मेरे पास आया है और इसको सुनारे के पास आपने रखवाया, फिर आपको मालूम था? उस वक्त 2 घंटे बाद मालूम था, 2 घंटे बाद पता चला। इसी औरत ने बताया क्या कहा? कि ये चीज़ मैं अंदर से उठा कर लेकर आई हूँ। फिर आपने क्या कहा? फिर मैं इधर से चला गया था, भाइयों के पास चला गया। भाई आपने फिर फौरन पुलिस को नहीं बताया? मैंने कैसे बता, मैं खुद परेशान था। फर्स्ट टाइम काम है मेरा, मेरे रिकॉर्ड चेक कर लें, पूरे मुझे 25 साल हो गए लाहौर में आते हुए, मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, पुलिस से बात करते हैं। अरबाब असलम साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना नसीराबाद तैनात हैं। इस केस की डिटेल्स हम जानते हैं अरबाब साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अरबाब साहब, कहाँ से मुलजिम को अरेस्ट किया है? मुलजिम को मैडम हमने ट्रेस आउट किया था, ये मुल्तान से बेसिकली अरेस्ट हुए हैं। इनको हमने सीसीटीवी फुटेज और जो हमारा साइंटिफिक मेथड होता है इन्वेस्टिगेशन का, उस पर हमने अमल पैरा होते हुए जब इनकी लोकेशंस वगैरह ली हैं, मुल्तान में इनकी लोकेशन है, ये फर्दर हमने फिर इन्हें लोकेट करके इन्हें ट्रेस आउट करके अरेस्ट किया। बिल्कुल ठीक है। रिकवरी कितनी की है? रिकवरी मैडम हमारी इसमें तकरीबन 90% हो चुकी है। जो इसमें गोल्ड गया था वो तो 18 से 20 तोले का था, तो 15 से 17 तोले का रिकवरी इसमें हो चुका हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइए, तमाम चीज़ें जो हैं वो मुदई ने बड़े अच्छे अंदाज में बताई हैं कि हमारे साथ पुलिस ने बड़ा कोऑपरेट किया है, हमारी बात सुनी है, हमारा जो जेवर है उसको रिकवर करवाया, वेरी गुड। यहाँ पर आप नहीं समझते कि एक पॉइंट मिस हुआ है, वो ये है कि ज्वेलर जिसने स्टोलन प्रॉपर्टी अगर कोई लेता है तो 411 उस पर लगता है। आप क्या समझते हैं कि उसका किरदार और उसके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल मैडम, उसके खिलाफ एज़ पर लॉ उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। वो हमारे पेश भी हैं, इनसे हमने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी ले ली थी उनके अगेंस्ट भी। फर्दर उन्हें हम यहाँ पे तलब करके जो रिकवरी स्टोलन प्रॉपर्टी उन्होंने परचेज़ किया वो हम इंशाल्लाह रिकवरी वो भी देंगे, वो बाउंड है इस चीज़ के एज़ पर लॉ। ठीक है। कितने दिन में मुलजिमान को गिरफ्तार किया? ये हमें इनको ट्रेस आउट करने में सिर्फ हमें 3 से 4 दिन लगे थे, उसके बाद फिर हमने इस पर वर्क करके अरेस्ट कर लिया था इन्हें। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।